Menstrual cycle. Today's our topic is menstrual and estrous cycle. जब हम menstrual cycle की बात करते हैं, menstrual cycle, the periodic bleeding, or we can say in humans and in humans, monkeys, apes, etc., or we can see primates जो होते हैं, they have a periodic cycle. After 28 days, they their produce system they produce uh, bleeding occurs. When this bleeding occurs, known as menses or bleeding, this is the menstrual cycle occurs in humans and primates. ये humans और primates में क्यों होता है पहले? It is only for the purpose of fertilization. It is for the purpose of pregnancy. This menstrual cycle, it prepares a female for the purpose of fertilization, and when the fertilization occurs, it leads to the pregnancy. It starts at the age of around 12 and stops at the age of around 45. That is from 12 to 45 years of age. And after 28 days, after every 28 days, or we can this cycle repeats. But this cycle, in case of females, it is suspended or stopped. It is suspended during the process of pregnancy and lactation. When a female is pregnant, FSH is not produced. FSH is not produced. Follicle stimulating hormone, usually produced by anterior pituitary, it remains suspended, stopped during the process of pregnancy. And during the process of lactation, when a mother gives milk to her child, again this menstrual cycle bleeding remains stopped or suspended. Why? Because during the process of lactation, a special hormone present in female's body at high level, that is known as prolactin. जब तक प्रोलैक्टिन ब्लड में होगा, बॉडी में होगा, फीमेल के बॉडी में, तब तक FSH is not produced. That is why during pregnancy as well as lactation, the menstrual cycle remains suspended. Now, ये जो menstrual cycle है, it has some phase. For the first phase is menstrual phase. असल में this is the last phase, but how we can see how it is an indication when bleeding occurs to a female, it is an indication that the menstrual cycle is at this level. That is why we say that it is the first phase. First phase, menstrual phase, जिसे हमें पता चलता है कि cycle कहाँ पर है, also known as bleeding phase. This phase continues for 4 days. Actually, it is for a period of 4 days, but not necessary. It can go up to 4, 5, 6 days, but it is usual times 4 days. अच्छा, menstrual phase में क्या होता है? Estrogen level, FSH level, it falls. ठीक है? It falls, and the endometrium of the uterus that shuts off. Blood comes out for these days. Now, the second phase, जो दूसरा phase है, इसके बाद जब menses stop होता है, menstrual cycle bleeding stop होता है, उसके बाद होता है follicular phase. In case of follicular phase, इसका दूसरा नाम है proliferative phase. In case of follicular phase or proliferative phase, follicles are formed. The ovary produces the follicles, and they are in large numbers. The ovary form the follicles. These are in large numbers, and among these follicles, one becomes large. This is known as Graafian follicle. This Graafian follicle is formed during the second phase of follicular or proliferative phase. और
ये यूजुअली इट इज ऑफ 10 डेज, 10 to 12 डेज। और इसमें एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज हो जाती है। एस्ट्रोजन लेवल जो यहां पर है, एस्ट्रोजन लेवल इज एट इट्स पीक व्हेन इट द फॉलिकल्स आर मैच्योरिंग, ग्राफियन फॉलिकल इज फॉर्म्ड। और यहां पर जब इसको बाहर आना होता है उस वक्त ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिक्वायर्ड। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिसका दूसरा नाम है ओव्यूलेटरी हार्मोन विच कॉजेस ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यूजुअली। Ovulation occurs on the 14th day. Ovulation occurs on the 14th day. Now, ये 10 और ये 4 हो गए 14। 14th डे के दिन क्या होती है? ओवुलेशन। अब ओवुलेशन के वक्त पहला एस्ट्रोजन लेवल बहुत ज्यादा होती है और अंदर से प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी ज्यादा होती है। ये प्रोजेस्टेरॉन लेवल है। प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि ये प्रोजेस्टेरॉन जो है इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम किसको हम कहेंगे? ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, जो अंदर बाकी सेल्स रहते हैं, ये वाले सेल्स ग्राफियन फॉलिकल ये है। ये सेल्स जो है, ये सेल्स इसको हम कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम एंड इट प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ ओवरी प्रोड्यूसेस प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। फॉलिकल्स जो सारे होते हैं उससे पहले ही प्रोड्यूस करते हैं एस्ट्रोजन, जिसको हम हीट हार्मोन कहते हैं। इट इंक्रीजेस द बॉडी टेम्परेचर। नाउ इसके बाद थर्ड फेज है ओव्यूलेटरी फेज। असल में हमारे पास थर्ड फेज है लैक्टियल फेज, लेकिन ल्यूटियल फेज हम क्यों कहते हैं ओवुलेट? असल में ओव्यूलेटरी फेज नहीं है, ओव्यूलेशन इज ए स्टेप। 14-15 ovulation, ova coming out from the ovary is known as ovulation under the influence of luteinizing hormone produced by anterior pituitary. Now, next is luteal or secretory phase. Luteal or secretory phase starts from the 15th day up to 28th day. That means it is of the 14th ये है, ये 10 है और ये 4 है। That is luteal phase or secretory phase 15 to 28 days, that is 14th डे है। 14 डेज ये साइकिल है। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन लेवल हाई होती है। दीज आर द थ्री स्टेप्स। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 डेज ब्लीडिंग होती है। फॉलिकुलर फेज और प्रोलिफरेटिव फेज 10 दिन का है। इसमें फॉलिकल बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बाहर आता है और उस स्टेप को ओव्यूलेशन हम कहते हैं। नेक्स्ट है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज 14 डेज का है और इसमें ये जो ओवा है और इसे बाहर आने के बाद इट गोज थ्रू द दिस फैलोपियन ट्यूब एंड रीचेस टू द यूट्रस। अगर यूट्रस में पहुंचने तक अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन होगी, अगर नहीं आया तो ये यूट्रस में जाएगा। देन अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल विल ऑकर। और अगर स्पर्म आया तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। अगर हम देखेंगे ग्राफिकली ओवरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे, ओवरियन हार्मोन कौन कौन सा होगा और यूटेरिन वॉल। सबसे पहले अगर हम देखेंगे यूटेरिन वॉल जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये सबसे पहले 1 to 2 mm होता है थिकनेस में, फिर बन जाता है 2 to 3 mm थिकनेस दूसरे, और लास्ट पर बन जाता है 5 mm थिक। 5 mm एट द टाइम ऑफ 5 mm थिक इट इज रेडी टू इम्प्लांट द जाइगोट। अगर जाइगोट आया बना हुआ है तो इम्प्लांट, अगर नहीं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल। दूसरा है हमारे पास ओवरियन हार्मोन। सबसे पहले एफएसएच निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, फॉलिकल्स बनाता है। फॉलिकल्स बनने के बाद वहां पर एस्ट्रोजन निकलता है। एस्ट्रोजन जो ही निकलता है तो ओव्यूलेशन होती है। ओव्यूलेशन के वक्त कॉर्पस ल्यूटियम देता है हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन एफएसएच कम होता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल ज्यादा। उसके नेक्स्ट स्टेप में फिर एफएसएच एलएच भी कम होता है। नेक्स्ट चेंजेस इन ओवरी। ओवरी में क्या क्या चेंजेस आएंगे? पहले ओवरी होती है, एफएसएच आता है, फॉलिकल्स बनते हैं, ग्राफियन फॉलिकल बाहर आ जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम अंदर रहता है, कॉर्पस एल्बिकन बनाता है, कॉर्पस हेमोरेज बनाता है,
और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन देता है, प्रिपेयर्स फीमेल बॉडी फॉर प्रेगनेंसी। और उसके बाद दीज आर द चेंजेस इन ओवरी। नाउ दिस वाज समथिंग अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। हमारे पास और एक साइकिल है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। ये हमारे पास है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल को हम कहते हैं ये जो एस्ट्रस साइकिल है, इट इज ए सीजनल साइकिल। सीजनल मीन्स किस एक बार होगा साल में, दो बार, या कुछ एनिमल्स में लाइक रैट्स में बहुत बार होता है। और इसमें अगर इन 2-3 दिनों में स्पर्म आया, फॉर एग्जांपल काउ, डियर है हमारे पास, उसको एक साल में एक बार होता है जिसको हम मोनोएस्ट्रस कहते हैं। डियर को एक ही बार होता है एक साल में साइकिल। अगर उन फ्यू डेज में स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन हो गई, ओके। अगर नहीं, पूरे साल में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसको हम कहते हैं मोनोएस्ट्रस, फॉर एग्जांपल डियर। दूसरा है बायस्ट्रस। बायस्ट्रस में क्या होता है, 2 साइकिल पर ईयर। ये किन में होता है, कैट्स एंड कैट्स, डॉग्स, शीप, गोट, काव, सॉरी काव नहीं, कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग्स। ये होता है वन, कैट्स एंड डॉग्स में 2 बार होता है। इनमें क्या होता है कैट्स एंड डॉग्स में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 बार होता है 6 महीने के बाद। अगर स्पर्म आया, फर्टिलाइजेशन जायगोट बनेगा, अगर नहीं तो 6 महीने तक नहीं होगा। इसके बाद हमारे पास पॉलीएस्ट्रस। पॉलीएस्ट्रस मीन्स मनी साइकिल्स इन केस ऑफ रैट्स एंड पिग्स। रैट्स एंड पिग्स मनी साइकिल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन है, हमें सोचना है कि एस्ट्रस साइकिल डिफरेंट कहाँ पर है। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल यूजुअल साइकिल है, ये एक साल में एक बार या 2 बार या कुछ रैट्स में बहुत बार होता है। लेकिन ड्यूरिंग दिस एस्ट्रस पीरियड एस्ट्रोजन लेवल इतनी हाई होती है कि a cow stops taking drink stops to take water, to drink water, stops feeding. It cries and cries and cries. This is the level of estrogen. इसको हम मैडनेस कहते हैं, पागलपन। एस्ट्रोजन लेवल इतनी हाई होती है कि a bitch stops eating, moving, running continuously one place to another till the reproduction occurs. काव की बात कह रहे हैं, 3 दिनों तक काव ना कुछ खाना चाहेगी, ना पानी पीना, ना कुछ, until fertilization occurs. इसको हम कहते हैं हीट पीरियड। लेकिन ये पीरियड इतना खतरनाक होता है, एट एनी कॉस्ट दीज एनिमल्स वांट the male partner, or we can say sperm, for fertilization, so that the estrogen level will come down. Otherwise estrogen level remains high in the blood and they remain wandering here and there and they cannot eat anything. Now, लेकिन यहाँ पर एक खतरा भी है। In some cases we have seen, अगर estrous cycle 1-2 बार चला गया तो they become infertile। ऐसा भी देखा गया in case of cows, animal husbandry में। तो this is known as estrous cycle। estrous cycle अगर हम नक्शल में कहेंगे, हीट पीरियड है, ओनली फ्यू डेज का है, पूरे साल में 6 महीने में एक ही बार आता है, हाई एस्ट्रोजन लेवल है, दे स्टॉप ईटिंग फूड टू ड्रिंक वाटर एटसेट्रा। अगर हम कंपेयर करेंगे एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए पीरियोडिक साइकिल, इट इज ऑफन। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्लोली इंक्रीज होता है, लेकिन एस्ट्रस साइकिल इज ए हीट पीरियड, एनिमल स्टॉप्स टू ड्रिंक वाटर एटसेट्रा। इवन इन केस ऑफ रैट्स, माइस में देखा गया, उसको हम ब्रूस इफेक्ट कहते हैं। माइस अगर प्रेग्नेंट है, इफ इट सीज ए स्ट्रॉन्ग मेल, it lost its fetus and starts again reproduction with a dominant male, that is known as Bruce effect. With this, this topic of menstrual cycle and estrous cycle comes to an end.
ये जो हम सेंट्रियोल की बात करते हैं, दो सेंट्रियोल्स होते हैं। किसके पास? स्पर्म के पास। ओवा के पास कोई सेंट्रियोल नहीं होता है, क्योंकि ओवा को जो सेकेंडरी oocyte जो है, उसको डिवीजन के लिए जो सेंट्रियोल चाहिए, वो है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, और ये होता है स्पर्म के पास। स्पर्म के पास दो सेंट्रियोल्स है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है, ये सेकेंडरी oocyte को चाहिए डिवीजन कंप्लीट करने के लिए, मियोसिस कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट है टू कंप्लीट द डिवीजन ऑफ ओवा। ये जो डिस्टल सेंट्रियोल है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कि ये जो स्पर्म होता है, उसके टेल में फ्लैजला होता है फॉर द मूवमेंट, लोकोमोशन। तो उसके लिए ये डिस्टल सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म मैक्सिमम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ ओवा, बिकॉज ओवा हैज टू रिमेन विद इन द बॉडी, विद इन द फीमेल बॉडी। इट हैज टू पास फ्रॉम ovary through fallopian tube to the upmost to the this uterus। लेकिन सो इसके पास ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक होता है, मटेरियल होता है, या हम कहेंगे साइटोप्लाज्म होता है। लेकिन sperm has to pass from male to female body, so it carries little cytoplasm only in the tail region. Now, membranes, this ओवा हैज थ्री मेम्ब्रेन। क्या क्या? एक तो इसके पास होता है वाइटिलीन मेम्ब्रेन, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा इसके पास होता है जूना पेलुसिडा, जूना पेलुसिडा। और तीसरा होता है कोरोना रेडिएटा। तीन लेयर्स इसके पास होते हैं। वाइल इन केस ऑफ sperm, sperm has only one layer, that is plasma membrane. Today's topic is types of eggs in different animals। हमारे पास on the basis of amount of yolk, eggs have been differentiated, divided into various types। पहला जो हमारे पास टाइप है, पहला टाइप हमारे पास है माइक्रोलिसिथल एग। माइक्रोलिसिथल एग में वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ यॉक होता है। ये प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ ह्यूमंस। ह्यूमंस में माइक्रोलिसिथल एग है, इसमें बहुत ही कम यॉक होता है, क्योंकि इन ये जो एग है, इट रिमेन्स अटैच्ड विद द फीमेल यूट्रस, मदर्स यूट्रस। तो इसको द फूड इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय मदर। Now we have mesolecithal egg. Mesolecithal egg means जिनके पास moderate amount of yolk होगा, और ये हमारे पास है in case of frog। फ्रॉग जो एम्फीबिया में आता है, उनके पास थोड़ा बहुत यॉक होता है। Now we have third, that is known as मैक्रोलिस्थल एग, और इसको हम कहते हैं पॉलीलिस्थल एग, जिसमें मैक्सिमम और वी कैन से लार्ज क्वांटिटी ऑफ यॉक होता है। इट इज प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स as well as in birds। Birds or reptiles, they are oviparous, they lay eggs into the atmosphere, into the environment, और वहां पर वो एग्स हैच होके, लेकिन द पीरियड इन विच दे स्टार्ट हैचिंग, इंक्यूबेशन पीरियड जिसको हम कहते हैं, उस वक्त इस एम्ब्रियो को, फीटस को जो फूड प्रोवाइड करता है, न्यूट्रंट जो प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑलरेडी स्टोर्ड बाय द मदर इन द यॉक, इन द एग। दैट इज नोन एज, दैट इज व्हाई दे रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यॉक। On the basis of distribution of yolk, distribution, whether the yolk present in the egg, it is uniformly distributed or it is being located at a small point। Now, जो हमारे पास पहला है, जिसको हम कहते हैं होमोलेसिथल एग। होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल। होमोलेसिथल और आइसोलेसिथल मीन्स जहां पर
इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क, जहां पर इक्वली पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूट होगा यॉर्क, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ ह्यूमंस। दूसरा हमारे पास है टीलोलेसिथल एग। टीलोलेसिथल मीन्स ओनली ऑन वन साइड, एक साइड में यॉर्क जमा होता है। इट इज प्रेजेंट इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। यहाँ तीसरा है हमारे पास सेंट्रोलेसिथल योक या सेंट्रोलेसिथल एग। यहाँ पर एग इज प्रेजेंट इन द सेंटर, एग इज प्रेजेंट इन द सेंटर, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर और यॉर्क बाकी है। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट ऑन द, जब न्यूक्लियस सेंटर में है तो साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरी। इट इज सेल्फ सफिशिएंट और इट इज, ये योग क्यों होता है इन बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड दिस, इट इज फॉर द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और इट इज इन केस ऑफ बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। नाउ अगर हम कंपेयर करेंगे स्पर्म एंड ओवा को, अगर हम स्पर्म एंड ओवा, स्पर्म इज द मेल गेमीट, ओवा इज द फीमेल गेमीट, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम देखेंगे क्या, what are the differences present in sperm as well as in ova. First हमारे पास है on the basis of structure, on the basis of structure ova जो है it is circular in nature, sperm is flagellated cell and it has different parts like head, neck, middle piece and tail। इसके पास चार पीस, चार पार्ट्स होते हैं। दूसरा है हमारे पास न्यूक्लियस। इनके साथ ओवा, ओवा है swollen, बड़ा, न्यूक्लियोप्लाज्म, बिकॉज इसके पास जो न्यूक्लियस होता है वो जो swollen होता है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो स्पर्म होता है उसके पास ज्यादा नहीं होता है। वो मैंने आपको बोला है क्यों, बिकॉज स्पर्म हैज टू पास फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी एंड इट इज बेस्ट टू कैरी लिमिटेड मटेरियल। That is why sperm has condensed nucleus and no nucleoplasm। जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इनके साथ ओवा, माइटोकॉन्ड्रिया इज स्कैटर्ड, पूरे में फैला हुआ है, लेकिन इनके पास, स्पर्म के पास यहाँ पर एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है फॉर द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ स्पर्म, दैट इज निभांकर और दिस इज प्रेजेंट इन मिडल पीस। ये जो स्पर्म होता है इट रिक्वायर एनर्जी टू पास फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी एंड दिस एनर्जी इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय दिस निबांकर और माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ सेंट्रियोल, ओवा के पास सेंट्रियोल नहीं होता है बिकॉज, बिकॉज सेंट्रियोल